We had started over with hydrogen. So, we have discussed about the different isotopes of hydrogen, and we have discussed about the difference between the properties of the compound because of the difference in the isotopes. And we have talked about something called the reduced mass. Now, we are going to talk, isotopes के बारे में बता दिया था ना, मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम ये ड्यूट्रियम बना सकते हैं, ठीक है? Now we are going to talk about allotropes of hydrogen. Allotropes of hydrogen. जब हम allotropes of hydrogen की बात करते हैं तो allotropes of hydrogen में हमारे पास अब क्वेश्चन ये आता है कि what exactly would be meaning the allotropes of hydrogen, उसका रीजन क्या था? अब देखो, अब हम एक थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पता है वैसे तुम्हें, वो ये कि हम एक चीज की बात करते हैं जिसे बोला जाता है एंट्रोपी. एंट्रोपी इज अ डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर का मतलब होता है ये नहीं कि देखने में वो कैसा लग रहा है. डिसऑर्डर का मतलब है कि क्या हम उस अरेंजमेंट को किसी फॉर्मूले या मॉडल से डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर हम उसे किसी भी फॉर्मूले या मॉडल से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो डिसऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर्ड है. And any deviation from that formula, that arrangement is a disorder. What they did was, scientists what they did was, they thought that hydrogen solid would be ordered. Hydrogen solid would be ordered. तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, उसको कूल करना शुरू किया, बहुत स्लोली कूल किया, उसको सॉलिडिफाई कर दिया. सॉलिडिफाई करने के बाद उसको और कूल करके उसकी सारी की सारी मोशन को स्टॉप कर दिया. तो आइडियली इट मस्ट बी हैविंग एन एंट्रोपी जीरो. It must be having a zero energy, zero entropical state. But they found that some energy was still stored in it. And that energy, whenever we talk about the physical energy stored in any system, that is stored in the form of disorder. So they were a little bit taken aback that why hydrogen, pure hydrogen, would be having a disorder. Then they thought about one peculiar thing that they might have missed out. And that was, हम बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की. दैट्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है which are in pair. So these electrons which are forming an electron pair, they are bound to have an opposite spin. But we are forgetting one little thing, that the proton also is a particle which has a spin. So when we talk about these particles, these two protons also have a spin, and this could be that the two protons have the same spin, or these two protons have opposite spin. The hydrogen molecule having the two nuclei with the same spin has slightly higher energy as compared to the hydrogen molecule having the two protons with the same spin, opposite spin. Be very clear, if we had all the hydrogen molecule of this kind, it would still be ordered state. If we had all the hydrogen molecule of this kind, it still will be ordered state. The problem is that some hydrogen molecule are of this kind and some hydrogen molecule are of this kind. So that is a disordered state. So these two allotropes of hydrogen. This one is termed as orthohydrogen. This one is termed as a parahydrogen. ठीक है, तो जब छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए. हाँ, कैसे? वो कोई फर्क नहीं पड़ता. स्पिन ऑपोजिट एंड स्पिन आइडेंटिकल. तो उसके अंदर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता. It's a more kind of quantum mechanical state of the system. Okay, लिखिए. Orthohydrogen. The hydrogen molecule having the protons
with the same spin is termed orthohydrogen. And second, parahydrogen. The hydrogen molecule having protons with opposite spin is termed parahydrogen. ठीक है, parahydrogen. आगे लिखिए इसमें, parahydrogen has a slight lower energy. Parahydrogen has a slight lower energy compared to orthohydrogen. हाँ, slight lower energy as compared to orthohydrogen. ठीक है, full stop. आगे था, at a low temperature, the percent of parahydrogen is more, full stop. With increase in temperature, the amount of orthohydrogen increases. With increase in temperature, the amount of orthohydrogen increases, reaching an equilibrium concentration of 75% ortho and 25% para at room temperature. ठीक है? So that is what we have as ortho and parahydrogen. हाँ, देखो बात सीधी सी है कि जैसे न्यूक्लियर स्पिन्स हैं, तो न्यूक्लियर स्पिन्स भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि स्पिन चाहे वो अंदर न्यूक्लियस की है लेकिन उसका इफेक्ट तो दूर तक है ना. ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आसपास अगर जो न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है तो वो न्यूक्लियस स्पिन करते हुए इस स्पिन को इफेक्ट कर दे. जब हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की बात करते हैं तो जो एटम्स हमारे पास है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी ना कि ऑपोजिट स्पिन के पहले से ही है, पर जब पेयरिंग होती है तो स्पिन चेंज हो जाती है. तो यहां पर भी वैसा हो जाता है. Okay, so that's what we have as ortho and parahydrogen, which are termed as allotropes of hydrogen. ठीक है, तो अब हमने allotropes of hydrogen की बात कर ली. अब जब allotropes of hydrogen की बात कर ली, now we are going to talk about the various compounds of hydrogen. जब various compounds of hydrogen की बात करें तो सबसे पहले we are going to discuss about the hydrides. हाइड्राइड्स. जब हम हाइड्राइड की बात करते हैं तो हाइड्राइड सिंपल सेंस में all compounds of hydrogen are termed as hydrides. Whether hydrogen is positive charge or negative charge, we don't bother. We simply call all the compounds of hydrogen as hydrides. अब एक बात का ख्याल रखना, hydrogen has the largest number of compounds, so we have huge number of hydrides. अब जो हाइड्राइड्स हैं उनको अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो हम उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. One is called ionic hydride, another one is called interstitial hydride, and third one are termed as covalent hydride.
तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखिए. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ group 1 and group 2, all the elements of group 1 and group 2, that is alkali, and alkaline earth metals, that is alkali and alkaline earth metals, except beryllium and magnesium, form ionic or salt like hydrides. आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे मेटल स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है. तो ये जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो हाइड्रोजन के ऊपर एक प्रॉपर नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं. और इस प्रॉपर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि द हाइड्रोजन इज गोइंग टू हैव H माइनस आयन इन दिस कंपाउंड. जिसमें H माइनस आयन है. ठीक है, देखिए, these compounds contain an actual H minus ion. ठीक है, full stop. These are ionic and their electrolysis, these are ionic and their electrolysis in the molten state releases hydrogen at the positive terminal, that is anode. ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं इन सब में H माइनस है. जैसे कि मैंने अभी बताया, इनको अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड एट द एनोड, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल. अब H माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और एक और बात का ख्याल रखना, एक छोटी सी बात है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक यूज करनी है. वो ये कि जब भी हम किसी सॉल्ट की बात करते हैं, जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अ फैक्टर कॉल्ड चार्ज डेंसिटी. ठीक है, मैं हमेशा जब चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं हमेशा, एंड दैट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल. तो अभी मैं चार्ज डेंसिटी तुम्हें क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये आगे बहुत बार यूज होगा, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट मिस इट. अब जैसे हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो चार्ज डेंसिटी में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. हमेशा मैं तुमसे मैं आराम से पूछ सकता हूं, यहाँ पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है. तो वो ये कि वंस, अभी ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा विद इन लेट्स से 10 years, एंड दैट क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड देयर वुड बी सर्टेन ऑप्शंस. ओके, एक सिंपल सी ऑप्शन ये होती है, यू वांट अ वर्किंग वाइफ, यू वांट अ हाउस वाइफ. ठीक है, आज की सिचुएशन ये होती है दैट मोस्टली पीपल प्रेफर वर्किंग वाइफ्स.
बोलना, बोल बोल। फाइन ना। अब एक सिंपल सी बात है, चलो देखो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं, प्रेफरेंस की बात। लेट्स से you have certain people that you might consider, and of course those people also have an option, that you have an option that there is a lady who is working, earning enough, and she would be more busy as compared to you. ठीक है? She would be more busy as compared to you. That would mean that when you want her for any reason, she might not be available. She might be busy and she might say, I'm busy, you do it on your own. And then, whenever she needs you, let's say, phone करके जी जरा सब्जी ले आना बाजार से, तो you are available. You are more free as compared to her. ठीक है? एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है that you are more busy than her. She is always available for you, but you might not be available. And मैंने maybe वो फोन कर दिया, कहते कि सुनिए कल बच्चों का ना वो है पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो would you be able to come? And you say नहीं तुम खुद ही चले जाना, I am too busy. That could be the case. In both the cases, you don't actually need your wife to work. That means your income is fine enough. You are earning enough to support both of you and save and live a luxurious life. So you don't actually need her to work. ठीक है? In the same manner, अगर यहाँ पे लड़कियाँ होती तो I would have suggested कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी earning काफी है and you don't actually need your husband to work. ठीक है? Now, the question is, whom would you prefer? A person busier than you or a person less busy than you? Busier than you means you are always available. Less busy than you means she is also always available. So, what would you prefer? You having free time or her having free time? Think over. This question is gonna come within 10 years. फैक्ट है ना? अब अगर आप में से कोई कहे नहीं मेरे लिए क्वेश्चन नहीं आएगा तो बात अलग है। तुम्हारा मंडे को फिर एग्जाम है क्या लोगों का जो आज एब्सेंट हो गए हैं? फिर आज ये मैं नारायणा की बात नहीं कर रहा, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। नारायणा के एग्जाम के लिए थोड़ा ना कोई एब्सेंट होता है, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं गायब है। मोहित त्रिश एब्सेंट है, शुभम जी एब्सेंट है, तन्मय एब्सेंट है। ओके फाइन, गिनती नहीं पूछी। ओके गिव मी द आंसर, थिंक ओवर, बोल। बेटा तुम्हारा भी एक ओपिनियन है ना। अगर यहाँ लड़कियां बैठी होती तो मैं तुमसे पूछता नहीं, अब यहाँ पूछ सकते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोलो। What would you prefer? Because this question, the answer to this question is going to have a huge impact on your life, your happiness and everything. बोलो, बोलो। I would be more busy than her. Okay, fine, that's an opinion. Anybody who thinks that the wife should be more busy than you? क्योंकि ये मेजॉरिटी आंसर होता है जो आपने मुझे बताया। I want to be more busy, I want to be earning more, I want to be dominant, I want to be having the wife always available whenever I need her. ठीक है? But the fact is, you will never be happy in this scenario. ये fact है।
बताता हूं क्यों। आपको ऐसा लगता है दिस इज काइंड ऑफ बीइंग सेल्फिश, ऐसा लगता है ना कि जैसे कि आई वॉन्ट टू बी मोर बिजी सो दैट आई एम हैविंग ऑल द लग्जरी दैट आई वॉन्ट। एक फैक्ट बताऊं बहुत प्यारा सा, दुनिया में कोई भी इंसान फ्री नहीं होना चाहता, कोई भी। हम हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। हम चाहे जितना भी चिल्ला रहे हैं फ्रीडम नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही, खाली समय नहीं मिल रहा, बी वेरी क्लियर, जब हम ये चिल्ला रहे होते हैं हमें खाली समय नहीं मिल रहा, हम एक्चुअली ये चिल्ला रहे होते हैं कि हमें अपनी पसंद का काम करने का समय नहीं मिल रहा। हम ही खाली नहीं बैठना चाहते। अब एक सिंपल सी बात है, जब लोगों को छुट्टियां मिल जाती है तो क्या करते हैं, घर में सो थोड़ना जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। अरे घूमना कोई आराम है, घूमना भी एक काम है, लेकिन वो घूमने निकल जाते हैं क्योंकि वो फ्री नहीं बैठ सकते। ठीक है, अगर किसी इंसान को फ्री बैठा दो तो क्या वो ऐसे कुर्सी पे ऐसे बैठ जाता? नहीं, वो कुछ और करना शुरू कर देता। और यहीं से कहावत आई ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को बहुत अल्टीमेट पनिशमेंट देनी होती है तो उस पनिशमेंट का मतलब होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है जिसमें उसका बेड होता है, जिसको वो छेड़ नहीं सकता, एक खिड़की भी नहीं होती, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, वो अकेला होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। लोग पागल हो जाते हैं उतने केस में, क्योंकि इंसान खाली बैठने के लिए बना ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। अब अगर मान लीजिए आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दिया जाए और आप सोने लगे तो कितना सो लोगे यार? एक टाइम आएगा जब आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आप इतना सो चुके हैं, करोगे क्या? सेम इज ट्रू विद योर वाइफ एंड यू। थिंक ओवर the time you are busy and she is free, what would she do? She also needs some work, she also wants to be busy. Be very clear, housewives spend more than working ladies. They want to be busy. Shopping is one of the ways to be busy. फर्दर, ये जो सास बहू वाले सीरियल चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? जस्ट टू कीप दोज हाउस वाइव्स बिजी। मुझे नहीं समझ में आता दोपहर के 2:30 बजे कौन सी वर्किंग लेडी उस सास बहू वाले सीरियल को देख सकती है। तो दैट इज द वे ऑफ कीपिंग देम बिजी, क्लियर? एंड इट इज रियली नेसेसरी फॉर यू टू नो वेयर योर वाइफ इज बिजी, isn't it? वरना पता चले जी बिल्कुल खाली है, जी बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? फिर कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो ना। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ शी इज मोर बिजी देन यू, शी वुड बी वरीड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। यू आर नॉट वरीड, यू नो व्हाट शी इज डूइंग। क्या पड़ोसी का? पड़ोसी का तुम मारोगे अगर उसने मारी तो? पड़ोसी की नजर, घर में भी नजर तब मारोगे ना जब पड़ोसी के यहां फ्री टाइम है। जस्ट अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट सिचुएशन वुड बी व्हेन यू बोथ आर इक्वली बिजी। That is the best situation. When you both need each other, you are available to each other. When you are busy, you are busy. That is the best situation. And the less than that best situation would be when you are a little less busy as compared to her. That would be the next best situation, at least for your peace of mind, for your happiness. ठीक है, समझ आ रही है बात? Do not ever leave free time with the person you love. Never. Make the other person busier than you. And whenever the free time is available to that person, you should be there. You have to be there. Clear? This free time is what I term as charge density.
किसी भी स्पीशी पर चार्ज डेंसिटी स्टेबल नहीं होती, किसी भी स्पीशी पे। हर स्पीशी का पहला टारगेट होता है इस चार्ज डेंसिटी को कम करना, किसी भी तरीके से करे, चाहे वो किसी को चार्ज देकर करे, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड बना के करे, चाहे वो हाइड्रेशन स्फीयर बना के करे, चाहे लैटिस बना के करे। चार्ज डेंसिटी हैज टू बी रिड्यूस्ड। जिस स्पीशी की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है, किसी भी स्पीशी की बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कैटायन और एनायन है, तो बेस्ट सिचुएशन इज वेयर द कैटायन एंड एनायन कंप्लीटली सैटिस्फाई ईच अदर्स चार्ज डेंसिटी सो दैट नन ऑफ देम हैज एन एक्सेस चार्ज डेंसिटी। अगर कैटायन के पास चार्ज डेंसिटी एक्सेस हो गई एज कंपेयर टू एनायन, तो कैटायन अपने आसपास वाटर का स्फीयर बना लेगा, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन स्फीयर। अगर एनायन के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई तो एनायन भी हाइड्रेशन स्फीयर बना सकता है, या फिर वो एनायन किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके अपनी चार्ज डेंसिटी को आगे एक्सटेंड कर देगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो सिंपल एज दैट इट विल बी वेरी रिएक्टिव। हाई चार्ज डेंसिटी आयन हमेशा लो चार्ज डेंसिटी आयन को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है। दैट इज द सेंस ऑफ रिएक्टिविटी। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब बात आई हाइड्राइड की। H माइनस, हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट एटम। H minus would be the very small anion. It has a negative charge. The surface of H minus is very small, and charge density, you know the formula? What is charge density? It is charge divided by surface area. It is surface charge density. Okay? So this charge density is charge by surface area. This is surface charge density. Clear? तो हाइड्राइड आयन का सरफेस एरिया बहुत छोटा है, चार्ज 1 यूनिट का है, उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसके साथ जो अटैच्ड कैटायन है उसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, हाइड्राइड उतना स्टेबल होता चला जाएगा। उसके एनायन, उस कैटायन की चार्ज डेंसिटी जितनी कम होती चली जाएगी, हाइड्राइड उतना ज्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा। So that would simply mean that if we talk about these hydrides, lithium ion is the smallest one. तो लिथियम के अंदर भी +1 चार्ज है, लिथियम का सरफेस एरिया भी कम है, तो उसकी भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो lithium ion would be able to stabilize the hydride the most effectively. सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते चले जाएंगे, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। एंड ये जो स्टेबिलिटी कम होने की बात है, ये हाइड्राइड की सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए नहीं है, ये स्टेबिलिटी थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल है। तो जैसे जैसे we move down the group, in any group of the periodic table, the stability of the hydrides decreases. सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा, जैसे सीजियम का सबसे बड़ा सरफेस एरिया होगा। तो सीजियम अपने में खुश है ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा। सीजियम स्टेबल है ना। आप बहुत बिजी हो, यू आर वेरी हैप्पी, आप पूरे दिन सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक काम करते हो, घर आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, सुबह उठते हो, सीधा 6 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हो, तुम्हें किसी दुनिया से मतलब नहीं है, यू आर टू हैप्पी इन योर लाइफ। ठीक है, विद इन 6 months योर वाइफ इज गोना फाइल द डिवोर्स पेपर्स, सिंपल, बिकॉज यू आर हैप्पी, शी इज नॉट। तो योर रिलेशन बिकम्स अनस्टेबल, इजंट इट? एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज कंपाउंड, रिलेशन इज कॉल्ड द बॉन्ड। तो अगर सीजियम आयन अपने आप में खुश है, तो हाइड्राइड की तो चार्ज स्टेबिलिटी, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना। हाइड्राइड इज द हाउसवाइफ, उसके बाद तो खाली जगह है, खाली फालतू टाइम है। फिर समझ आई बात? तो इट इज नॉट अबाउट हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी और अबाउट लो चार्ज डेंसिटी, इट इज अबाउट कंपैटिबिलिटी। अगर आप बहुत बिजी हैं, योर वाइफ इज अलॉन्ग विद यू वेरी बिजी, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, विच वर्क इन नोएडा, विच वर्क इन गुड़गांव एंड लिव इन नोएडा, तो उनकी तो लाइफ देख लो।
ठीक है, सुबह 6 बजे निकलेंगे, रात को 10 बजे घुसेंगे, दोनों के दोनों साथ निकलेंगे, दोनों के दोनों घर में घुसेंगे, दोनों के दोनों बिजी हैं, अल्टीमेट बिजी हैं, उनकी लाइफ आपस में शायद बात नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन फिर भी वो कंपैटिबल है, उनमें डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों को पता है कि मैं भी बिजी हूं, वो भी बिजी है, दोनों का टाइम कंज्यूम्ड है, दोनों एक दूसरे को शक नहीं कर रहे। ठीक है, बट द मोमेंट वन गेट्स बिजी अनदर गेट्स फ्री, टकराव शुरू। अंदर इसमें ये एक एग्जांपल ले लो कि मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ ले जा रहे हैं और दोनों में से एक ले ऑफ हो गया, जिस दिन दोनों में से ले ऑफ होगा विद इन 1 मंथ तलाक हो जाएगा, क्योंकि एक फ्री है, दूसरा बिजी है। जो बिजी वाला है वो फ्री वाले को कहेगा कि तुम तो सारा दिन खाली बैठे रहते हो, तुम कोई काम धाम नहीं है, तुम ये तो कर लो वो तो कर लो, और जो खाली वाला है वो बिजी वाले को कहेगा कि तुम तो सारा दिन ऑफिस में ऐश करते रहते हो, तुम तो वहां पे चाय पीते रहते हो, मुझे पता है ना मैं क्या काम करता हूं। 1 महीने में तलाक हो जाएगा। एंड दैट वाज द टिपिकल प्रॉब्लम। जब भी वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, जब भी कोई मेल्ट डाउन हुआ है, बहुत डिवोर्सेस हुए, हमेशा हुए। समझ आ रही है बात? क्योंकि मैरिज इज नॉट अबाउट मनी, मैरिज इज अबाउट कंपैटिबिलिटी, बॉन्ड इज अबाउट कंपैटिबिलिटी। क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए यहां पे, ये तो चलो मैंने कैटायंस की बात की है, एनायंस हाइड्राइड आयन है, अगर मैं HF, HBr, HI की भी बात करूं तो वहां पे हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है। तो जब HI की बात करते हैं, आयोडाइड आयन बहुत बड़ा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है, बट H प्लस है ना, वो तो कहता है भाई मुझे भी तो दो, तुम तो स्टेबल होकर बैठे हुए हो। HI इज वेरी अनस्टेबल, और जहां कहीं भी हाइड्राइड अनस्टेबल हो जाता है, दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सारे के सारे हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग एजेंट बनते चले जाते हैं, एंड द रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए, हाइड्राइड इज अ स्मॉल anion. Hydride is a small anion with a high charge density. Full stop. To be stable, it needs a cation with a high charge density. ये आ जाते हैं तो पता लग जाता है सबके। It needs a cation with a high charge density. Full stop. On moving down the group, the size of the cation increases its charge density decreases. The size of the cation increases, its charge density decreases, and with that, the stability of the hydride decreases. Full stop. Throughout the periodic table, the stability of the hydride, throughout the periodic table, the stability of the hydride decreases down the group, and the reducing power of the hydride increases. Reducing power of the hydride increases
डाउन द ग्रुप। ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, कोई भी आयन जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो वो लो चार्ज डेंसिटी आयन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। अब यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं H माइनस के साथ वर्सेस OH माइनस, H माइनस वर्सेस OH माइनस। जब हम H माइनस की बात करेंगे तो वहां पे नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ऑन हाइड्रोजन, अ स्मॉल एटम। जब हम OH माइनस की बात करेंगे, द नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑन ऑक्सीजन विच इज मच लार्जर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो OH माइनस की चार्ज डेंसिटी H माइनस के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, अटेंडेंस मत लगाओ, मैं ले लूंगा। तो OH माइनस की चार्ज डेंसिटी H माइनस के कंपैरिजन में काफी कम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि OH माइनस इज मोर स्टेबल दैन H माइनस। तो अगर H माइनस को HOH से रिएक्ट करवा दिया जाए पानी से, तो being a higher charge density ion, it is going to pull away the H plus ion from OH minus, convert to H2 and create OH minus. So the reaction of any of the ionic hydride with water releases hydrogen. Is it clear? ठीक है, देखिए, hydride ion has a higher charge density compared to hydroxide ion. Hydride ion has a higher charge density as compared to hydroxide ion. Full stop. Hence, all the ionic hydrides on reaction with water, all the ionic hydrides on reaction with water release hydrogen and form respective hydroxides ठीक है। कैल्शियम हाइड्राइड, आगे लिखो इसमें, कैल्शियम हाइड्राइड is used to store hydrogen and is known as hydrolith, that is hydrogen producing rock। ठीक है। देखो, storing and transporting hydrolith is much easier as compared to storing and transporting hydrogen gas itself. हाइड्रोजन एक बहुत लाइट गैस है, तो वो बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है फॉर अ स्मॉल मास। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोलिथ की बात करें तो इसका मोलर मास 42 है, तो 42 grams of hydrolyth on reacting with water is going to produce 4 grams of hydrogen. On the other hand, अगर 4 grams of hydrogen को हम स्टोर करना चाहें तो we need 44.8 liters, 2 मोल हो गया ना, और कहाँ 42 ग्राम्स इतना सा होगा और कहाँ 44.8 लीटर्स कितना होगा। अगर अंडर प्रेशर करोगे तो फिर आपको एक कंटेनर वगैरह डिफरेंट बनाने पड़ेंगे। हाइड्रोलिथ के साथ आपको सिर्फ एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए विदाउट एनी प्रेशर, जबकि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए आपको वेरी हाई प्रेशर चाहिए। अगर आप लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन रिक्वायर्स अ वेरी लो टेम्परेचर टू बी लिक्विफाइड एंड अ वेरी हाई प्रेशर। तो इसलिए लिक्विड हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, हाइड्रोलिथ को स्टोर करना काफी कंपैरेटिवली बहुत इजी है। माना पानी डल गया तो ये भी कोई कम नहीं है, लेकिन
अगर पानी नहीं डलता तो काफी इजी है ना इसको स्टोर करना. सो दैट इज व्हाट द यूज ऑफ हाइड्रोलिथ इज. अब जब भी मैं स्टूडेंट को हाइड्रोलिथ की बात करता हूं तो स्टूडेंट्स के पास कुछ सवाल होते हैं. सर, व्हाई कैल्शियम हाइड्राइड? व्हाई कांट वी यूज स्ट्रोंशियम हाइड्राइड? व्हाई कुड वी नॉट यूज बेरियम हाइड्राइड? ठीक है ना. इसके मेरे पास बहुत सिंपल से आंसर्स हैं. पहला केमिस्ट्री का आंसर. स्ट्रोंशियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड आर मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम हाइड्राइड. यहां पे कंसेप्ट ये नहीं है कि हमें हाइड्रोजन जल्दी जल्दी चाहिए. यहां पे कंसेप्ट ये है कि हमें इसे स्टोर करना है. हमें हाइड्रोजन धीरे धीरे चाहिए. जल्दी जल्दी नहीं चाहिए, धीरे धीरे चाहिए. ठीक है. तो ये पहली चीज है. तो ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव है तो इस वजह से इसको देना मुश्किल है. दूसरी बात, स्ट्रोंशियम और बेरियम का मोलर मास कैल्शियम से ज्यादा है. तो टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वी वुड नीड अ हायर मास ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड. ठीक है. जब हमें हायर मास ऑफ बेरियम हाइड्राइड और स्ट्रोंशियम हाइड्राइड चाहिए तो ज्यादा मास के लिए ज्यादा जगह भी चाहिए. ज्यादा जगह चाहिए तो ऑफकोर्स उसको स्टोर करना और मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि मास ज्यादा है. ठीक है. चलो, ये तो छोटे छोटे रीजन थे. और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, स्ट्रोंशियम और बेरियम कैल्शियम से कहीं ज्यादा महंगे हैं. ठीक है. कैल्शियम टू अबंडेंट है, बेरियम और स्ट्रोंशियम उतने अबंडेंट नहीं है. ओके. अब जब मैं ये बात बोलता हूं, ये सारे के सारे रीजन मैं यहां पर दे देता हूं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि सर ने इतनी आसानी से आंसर क्यों दे दिया. तो फिर सवाल पूछते हैं, सर आपने कहा कि रिएक्टिविटी इसकी नीचे ज्यादा हो जाएगी. एग्री. ओके फाइन. व्हाट अबाउट लिथियम हाइड्राइड? तो आंसर सिंपल सा ये है कि लिथियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट बराबर है. तो रिएक्टिविटी वाला फैक्टर गया. अगर मैं लिथियम हाइड्राइड यूज करता हूं तो lithium hydride on reacting with water is again going to give lithium hydroxide along with H2. अब lithium का molar mass is 7. Lithium hydride का molar mass is going to be 8. So 8 grams of lithium hydride is going to give 2 grams of hydrogen. That means 4 grams of lithium hydride gives 1 gram of hydrogen. Calcium hydride में 42 grams gives me 4 grams of hydrogen. ठीक है. तो इसका मतलब हुआ 10.5 grams of calcium hydride is going to give 1 gram of hydrogen. तो lithium hydride simple as that, सीधे सीधे कैलकुलेशन में कैल्शियम हाइड्राइड से 2.5 टाइम्स बेटर हो गया. वो 4 ग्राम दे रहा है, वो 10.5 ग्राम दे रहा है. तो लिथियम हाइड्राइड becomes much better than calcium hydride. ठीक है. तो स्टूडेंट को लगता है ये तो अब तो हमने कमाल मार दिया, अब सर कैसे जवाब देंगे, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ क्यों बोलते हैं, लिथियम हाइड्राइड को क्यों नहीं. तो सिंपल सा आंसर आता है, भाई साहब लिथियम हाइड्राइड बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. लिथियम इज क्वाइट रेयर. ठीक है. तो फिर ये भी फंस गए यहां पे. तो कहते हैं तो सर ऐसे कोई जगह नहीं है क्या जहां पे लिथियम हाइड्राइड यूज हो सके, हर जगह पैसा इंपॉर्टेंट होता है. तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब होता है, ना ऐसे कई जगह है जहां पे लिथियम हाइड्राइड यूज होता है, पर वहां पर जहां पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. और जो सिर्फ एक जगह जहां पर कोई कंट्री पैसे की चिंता नहीं करती, दैट इज द मिलिट्री ऑपरेशंस. तो जब हम मिलिट्री कमांडोज की बात करते हैं, जैसे कहीं पर अगर कहीं पे जगह क्या होता है कि दे सर्टेन टाइम दे हैव टू टेक द एंटीना टू अ हायर वैल्यू, हायर ऑल्टीट्यूड पे एंटीना पहुंचाना होता है या सर्वेलेंस करनी होती है या कुछ भी कैमरा वगैरह पहुंचाना होता है. तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जो बैलून में भरने के लिए हाइड्रोजन होता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग लिथियम हाइड्राइड विद वाटर. तो उनकी जो सर्वाइवल किट होती है वहां पे लिथियम हाइड्राइड का पैकेट भी होता है. Is it clear? तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए लिथियम हाइड्राइड यूज होता है, बट कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए कैल्शियम हाइड्राइड ही यूज होता है. Is it clear? Any confusions? So that is what we have as the ionic hydride and their properties. कुछ पूछना है? समझ आ गया? चलो. Once we have talked about the ionic hydrides, now we are going to get along with the next type of hydrides. These are called the interstitial hydrides or metallic hydrides.
These hydrides are formed by transition metals. The interstitial or metallic hydrides are formed by transition metals. Now, let us first of all understand what is the meaning of the word interstitial. Interstitial का मतलब क्या होता है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे. हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी एटम्स हैं, दे आर सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल स्फेयर्स. इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सॉलिड स्फेयर्स हैं. तो जब भी आप स्फेयर्स को अरेंज करोगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप 100% जगह को ऑक्यूपाई कर लो. बीच में गैप्स जरूर बचेंगे. These gaps which are left in an arrangement of spheres or arrangement of any particles are termed as interstitial voids. Voids का मतलब होता है खाली जगह. Interparticle voids है ये. ठीक है? These are called interstitial voids. These voids are supposed to be empty. But the small atoms like hydrogen, like carbon, they have a capacity to fill these interstitial voids. And when they do so, they form interstitial compounds. These are essentially mixtures. यहाँ पे chemical reaction नहीं होता, ये mixtures हैं. और mixtures जब solid state में बनते हैं तो उनको generally हम term कर देते हैं alloys. So these are also termed as interstitial alloys. ठीक है? Is it clear? तो जरा definitions लिख लीजिए. सबसे पहले लिखिए definition interstitial void की. The empty spaces left in an arrangement of spheres. Now this arrangement of spheres is termed as a lattice. The word लिख लीजिए lattice. The empty spaces left in an arrangement of spheres are termed interstitial voids. ठीक है? They are termed interstitial voids. ठीक है? Now, अब ये जो interstitial voids हैं, they are small atoms like hydrogen and carbon. They may get trapped or they may occupy these interstitial voids. ये भी लिख लीजिए. लिखिए. The small atoms like hydrogen and carbon, small atoms like hydrogen and carbon may occupy these positions to form interstitial compounds. Full stop. These are actually mixtures. These are actually mixtures not having any definite stoichiometry, that is formula, and are termed as interstitial alloys. Full stop. The particle occupying the empty space always
occupies a void smaller than itself, full stop, so that it properly fits in it and does not rattle. So that it properly fits in it and does not rattle. ठीक है, हिलना नहीं चाहिए. परफेक्ट, यही मैं बोलने वाला था अभी कि अगर ऐसी बात है तो जब भी हम इंटरस्टिशियल वॉइड में किसी चीज को डालेंगे तो वो मेटल को एक्सपैंड करेगा. चार्ज डेंसिटी की बात ही कहाँ आ गई? चार्ज था ही कहाँ जो चार्ज डेंसिटी की बात आएगी? हाँ बेटा, छोटे वाले के अंदर पूरी तरह उसको टच नहीं कर रहा. बेटा सुन, जब हम बोलते हैं ना रिपल्शन, टच, एक बात बताओ, टच होता क्या है? टच इज नथिंग मोर देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, तो जब मैं बोल रहा हूं ना कि वो अपने से बड़े वॉइड में है, तो उसका मतलब है कि रिपल्शन से ज्यादा उसकी मूवमेंट है. अगर वो मूव नहीं कर पा रहा तो मैं उसी को बोलूंगा अपने इसमें है. अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन एटम ऐसा उसका साइज क्या है? कुछ भी नहीं, तो किसी भी वॉइड में फिट हो जाना चाहिए. पर फिर भी हाइड्रोजन एटम भी जब वॉइड में जाता है तो उसको धक्का मारता है. क्यों? क्योंकि रिपल्शन है. तो उसका जो इफेक्टिव साइज है वो उसके एक्चुअल साइज से बड़ा है. अब एक्चुअल साइज तो हम कभी निकाल नहीं सकते, तो क्या बात करना उसके बारे में. ओके, तो जब भी मैं हाइड्रोजन एटम इसके अंदर डालूंगा तो ये इसके साइज को एक्सपैंड करेगा. अब देखो, हमने क्या किया, एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करवाया, साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन वेट भी तो बढ़ाया है. अब अगर हम वेट बढ़ाने की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के केस में यह होता है कि द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इज मोर देन द इंक्रीज इन वेट. सो ओवरऑल जो हाइड्राइड्स की, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की डेंसिटी है वो इनिशियल मेटल से कम है. लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह हम कार्बन डाल दें तो कार्बन भी एक्सपैंड करता है, लेकिन एक्सपेंशन से ज्यादा वो वेट इंक्रीज कर देता है. तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड की डेंसिटी मेटल से ज्यादा होती है. इज दैट क्लियर? समझ आई ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये लिख लीजिए. In case of interstitial hydrides, the hydrogen atom pushes the metal atoms away from each other full stop. This expands the volume. This increases the volume. But hydrogen is not able to compensate it. But hydrogen is not able to compensate it by increase in mass. Full stop. So the interstitial hydrides have a lower density compared to the metal from which they are formed. Full stop. They have the same metallic luster
they have the same metallic luster and the electrical conductance. They have the same metallic luster and the electrical conductance. Is that clear? कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारे पास इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी है. ठीक है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाइड्राइड सारे मेटल्स नहीं बना पाते. अब जैसे अगर ग्रुप 6 की बात करें, जैसे क्रोमियम फैमिली की बात करें, तो सिर्फ क्रोमियम ही बना पाता है. क्रोमियम के नीचे वाले एटम्स हाइड्राइड नहीं बनाते. ठीक है. ग्रुप 7, 8, 9 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब 7 का मतलब है मैंगनीज, 8 का मतलब है आयरन, 9 का मतलब है कोबाल्ट. ग्रुप 7, 8, 9 ऑफ द पीरियोडिक टेबल ये हाइड्राइड बनाते ही नहीं है. The absence of the hydrides of group 7, 8, 9 of the periodic table is termed as hydride gap. लिखिए. Not all transition metals form hydrides. Not all transition metals form hydrides. Full stop. In group 6, only chromium forms the hydride, while group 7, 8 and 9 members, do not form hydride. Full stop. तो अब ये डेफिनेशन लिखिए हाइड्राइड गैप की. देखिए, the absence of the hydrides of group 7, 8 and 9 of the periodic table is termed hydride gap. ठीक है. तो ये हमने इंटरस्टिशियल या मेटलिक हाइड्राइड्स की बात की. ओके. अब हम बात करेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स की. कई बार स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, कि गुस्से में आ जाते हैं कि सर इसको आप हाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं. यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वहां पे जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. Being more electronegative, that would mean that here the hydrogen should be having a positive charge, not a negative charge. Why should we call as hydride? Answer I have already given you, that all the hydrogen compounds are deliberately said hydrides, whether they have positive, negative or no charge. तो हमने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की जो बात की थी वो जीरो चार्ज है, वहां पे हाइड्रोजन एटम है, वहां पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, वो सिर्फ ट्रैप हो गया है. ओके. तो यहां पे इसलिए हम इनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स बोल देते हैं. अब जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो these hydrides are further classified in 3 categories. One is called electron deficient. The next is called electron precise, and then we have electron rich. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन रिच के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो these are group 15, 16, 17 हाइड्राइड्स. जनरली 15, 16 के हाइड्राइड्स को बोला जाता है. फॉर एग्जांपल we have NH3, we have H2O. ठीक है. These hydrides have more electrons in the outermost shell than what they use to form bonds with hydrogen.
So they have donatable electron pairs in the outermost shell and they are Lewis bases. देखो, these hydrides, electron rich hydrides, these hydrides have more electrons in the outermost shell. These hydrides have more electrons in the outermost shell than what they use for making bonds with hydrogen. Full stop. They have donatable electron pair. They have donatable electron pair in the outermost shell they have donatable electron pair in outermost shell and behave as Lewis bases. Full stop. Lewis bases क्या हुआ? आगे लिखिए. The hydrides of group 15, 16 and 17 are in this category. Okay? So these are what we term as the covalent electron rich hydrides. Okay? Is it clear? Now electron precise. The examples are simple. The hydrides of carbon, the hydrides of silicon. यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं. So these are electron precise. ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना कम है. Okay, तो लिख लीजिए डेफिनेशन. Electron precise. The hydrides in which the number of electrons in the outermost shell, the number of electrons in the outermost shell of the atom is the same as the number of bonds it forms with hydrogen. Is same as the number of bonds it forms with hydrogen. Full stop. The hydrides of group 14 elements. The hydrides of group 14 elements are in this category. Okay? Here? So that is what we have as electron precise. Now to talk about electron deficient. ठीक है? अब चलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की डेफिनेशन देने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वर्ड आसानी से रजिस्टर नहीं होता. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड वी टेक एन एग्जांपल ऑफ
BH3. This species termed as borane. पता नहीं है जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड्स उनके साथ एल्केन लगा लेते हैं, जैसे कि अमोनिया का भी एक आईयूपीएसी नेम है, इट इज कॉल्ड एजेन. ठीक है, मीथेन, इथेन, साइलेन, बोरेन, जर्मेन, तो इस तरीके से इसका नाम लगा देते हैं. ठीक है, तो यहां पर इसे बोला जाता है बोरेन. अब ये जो बोरॉन है ना, यहां पर इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तीन इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए. लेकिन बोरॉन के पास एक कैपेसिटी है टू एक्सेप्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में ऑर्बिटल 4 है, इलेक्ट्रॉन 3, तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचा हुआ है. Because of that, this BH3 is actually a Lewis acid. It has a capacity to accept the electron pair. Now, what happens is that this boron comes in contact with another borane. अब इस पूरे के पूरे बोरेन के बल्क में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना बोरॉन के पास आउटरमोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ना हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है. इस पूरे सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बोरॉन हाइड्रोजन के बॉन्ड में है, और कहीं इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं. अब अगर आप ये कहो कि सर बोरॉन के 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा वो 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इतने अंदर है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. उनको ज्यादातर हम न्यूक्लियस का ही पार्ट मान लेते हैं, उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. तो यहां पे बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बोरॉन और हाइड्रोजन में डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है. अब ये जो बोरॉन है ना, ये अपनी डेफिशिएंसी को कवर अप करना चाहता है. ये क्या करता है, इस बोरॉन के हाइड्रोजन के पास चुपके चुपके जाता है और हाइड्रोजन से बोलता है कि देख हाइड्रोजन, देख बोरॉन तेरे को तंग कर रहा होगा, तो एक काम कर, ये इलेक्ट्रॉन लेके ना मेरे पास आ जा. जैसे ही तू मेरे पास आएगा, मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैं तेरे को ज्यादा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दूंगा. ठीक है, हाइड्रोजन किसी का दीन ईमान नहीं है, कूदता फांदता रहता है वो, और इसीलिए जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है लास्ट में हाइड्रोजन ही पिटता है. हमेशा देखना, कभी भी किसी रिएक्शन देखो ना, लास्ट में या तो हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा या डाल दिया जाएगा, लास्ट में हाइड्रोजन ही सब कुछ बैलेंस करता फिरता है. तो यहां पे जब बोरॉन इस हाइड्रोजन को बरगलाता है, यानी कि उसको इंटीमेट करता है, वो क्या कहते हैं, इंटीमेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इंस्टिगेट, इसे इंस्टिगेट बोलते हैं. इंस्टिगेट करता है या मक्खन मारता है, जो भी आप कर रहे हो वो करता है. तो ये हाइड्रोजन कहता है ठीक है, मुझे क्या ले, ये इलेक्ट्रॉन लेकर इस बोरॉन के पास आ जाता है. ठीक है, अब बोरॉन खुश हो जाता है कि यार मेरा तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एंड सडनली वांट्स टू गिव अ पार्टी. तभी उसको रियलाइज होता है कि जब वो इस बोरॉन के पास चुपके चुपके इस हाइड्रोजन को छीनने गया था, उतने में ये वाला बोरॉन इस हाइड्रोजन से बात कर रहा था. तो यहां से इसने हाइड्रोजन लिया, वहां से उसने हाइड्रोजन ले लिया. अब देखो इस सारे सिस्टम में हाइड्रोजन के मजे आ जाते हैं. दो बोरॉन उसके आसपास घूम रहे हैं, हाइड्रोजन. ऐसा मजेदार बात, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी बनी है, 2 बॉन्ड बनाना उसके बस की भी नहीं है, फिर भी उसको इतनी बटरिंग हो रही है, इतना मजा आ रहा है. तो हाइड्रोजन ना मजे में आ जाता है. अब बोरॉन कहता है यार वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कैसे करें, हाइड्रोजन एक ही है. तो दोनों बोरॉन के बीच में ना एक ट्रूस हो जाता है कि देख यार इस हाइड्रोजन को ना कूदने फांदने दे. ठीक है, क्या होता है कि ये बोरॉन है, ये दूसरा बोरॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है. ठीक है, अब यहां पे 2 और हाइड्रोजन है, ये बेचारे शरीफ हाइड्रोजन, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना आराम से बॉन्ड बना के चुपचाप बैठे हुए हैं. ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, ये बोरॉन अपना एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है यहां पर. ठीक है, ये बोरॉन भी अपना एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है. अब देखो इन दोनों में से कोई एक बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देता है. ठीक है, इन द सेम मैनर ये हाइड्रोजन भी काम करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये बोरॉन एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है,
ये बोरॉन भी एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है, और इन दोनों बोरॉन में से एक बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट कर देता है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस बोरॉन का, एक इस बोरॉन का, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे, 2 ये रहे। ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऑर्बिटल के मिलने से बने हैं। ये जो एक नया ऑर्बिटल बन जाता है, 3 ऑर्बिटल के मिलने से एक ऑर्बिटल बनता है, यहां पे भी 3 ऑर्बिटल के मिलने से एक ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, आप अब कह सकते हैं कि बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये बोरॉन भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, यहां पर ये sp2 था, यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, बोरॉन बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर ये शरीफ वाले हाइड्रोजन है, यहां पर ये शरीफ वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। एक बात का ख्याल रखना कि ये हाइड्रोजन इस प्लेन में है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डायबोरेन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम एक प्लेन में है और ये 2 एटम इस प्लेन के ऊपर और नीचे है। ये है डायबोरेन का स्ट्रक्चर। कोई कंफ्यूजन? ध्यान से देख लो, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, ये जो एक मजेदार सा बॉन्ड यहां पर बना है, इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सोचें। टॉकिंग अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, ये बॉन्ड 3 एटम्स को ज्वाइन कर रहा है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन 2 बोरॉन्स। ठीक है, तो वेरी ऑब्वियसली दिस बॉन्ड इज टर्म्ड एज अ ब्रिज बॉन्ड, या फिर इसको हाइड्रोजन ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, कभी भी अगर हमें 3 एटम को आपस में जोड़ना हो तो मिनिमम कितने बॉन्ड्स चाहिए होंगे 3 एटम को जोड़ने के लिए? 3 एटम्स को जोड़ने के लिए मिनिमम कितने? 2। 3 एटम्स को जोड़ने के लिए हमें मिनिमम 2 बॉन्ड्स चाहिए। ठीक है, और 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। ठीक है, यहां पर हमने 3 एटम्स को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें ये बॉन्ड्स बनाने के लिए चाहिए थे, हमारे पास उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट क्लियर? सो वेरी ऑब्वियसली दिस वुड बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। ठीक है, now here it is justified that this would be an electron deficient hydride. The number of electrons taking part in the bond formation are less than what is required according to the Lewis concept. ठीक है, यहां बॉन्ड्स तो आपने बना दिए पर इलेक्ट्रॉन उतने हैं नहीं, so that is how this becomes an electron deficient hydride. ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की आप डेफिनेशन लिख लीजिए।
The hydrides in which the atom forms more bonds with hydrogen than the number of electrons present in the outermost shell. Full stop. These hydrides have electron deficient bonds. These hydrides have electron deficient bonds and are Lewis acids. Full stop. अब देखो, अगर मैं इन बॉन्ड्स की बात करूं तो हम एटम्स को सेंटर्स बोलते हैं. क्लियर? एंड वी टॉक अबाउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज सेंटर्स. अब जैसे कि अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो इस बॉन्ड में कितने एटम्स हैं? इस वाले बॉन्ड में, ये जो हाइड्रोजन बोरॉन का बॉन्ड है, इसमें कितने एटम्स हैं? 2. इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर्स हैं. ठीक है, तो आई कैन कॉल इट 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है. ये वाला बॉन्ड भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है. ये वाला बॉन्ड भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है. इज इट ओके? तो जितने भी नॉर्मल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं. क्लियर? अब अगर इस बॉन्ड की बात की जाए, ये बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है. इस बॉन्ड के अंदर कितने एटम्स हैं? 3. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. सो दिस बॉन्ड इज a 3 center 2 electron bond. ठीक है, so this is a bridge bond, that is a hydrogen pair. This is a electron deficient bond. This is a 3 center 2 electron bond. तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं डायबोरेन की, और आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, देन यू हैव टू से दैट डायबोरेन हैज 4 normal boron hydrogen bond, that is 2 center 2 electron bonds, and it has 2 electron deficient bonds, hydrogen bridges, which are 3 center 2 electron bonds. कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, and obviously because of its shape it is called banana bond. ठीक है, so diborane is an electron deficient hydride. कोई कंफ्यूजन?
कोई प्रॉब्लम है यहाँ? Okay. So that's what we have as the electron deficient hydrides and all these things. अब इसी कैटेगरी में हमारे पास BeH2 भी आता है, बेरिलियम हाइड्राइड. ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है. अब यहाँ पे आपने सवाल नहीं पूछा कि मैंने जब आयनिक हाइड्राइड्स की बात की थी तो वहां बेरिलियम और मैग्नीशियम को इंक्लूड क्यों नहीं किया. बेरिलियम और मैग्नीशियम को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं. ठीक है. So that is what we have talked about these various hydrides. क्या बोलूं उसको? वो तो एलाई तो आयनिक हाइड्राइड है. बेटा कोवेलेंट हाइड्राइड नहीं बनाता. और लिथियम के कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है, कोवेलेंट नहीं है. ज्यादा ही नहीं तेज चल रहा. पता नहीं क्या होता है कि सर्दियों में पंखे तेज चलते हैं, गर्मियों में नंबर 1 पे पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है, और सर्दियों में भी बड़ा तेज चला रखा है. पंखों को भी पता चल जाता सर्दी आ गई है. Is that clear? So these are the 3 types of hydrides. कुछ पूछना है? हाँ बोलो. अब यहां पर हाँ तो वो 2 बनाएगा ना बनाना बॉन्ड्स. उसके अंदर कोई भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड नहीं बनेगा, उसमें सारे बनाना बॉन्ड बन जाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ एक ही है. हाँ तो बेटे ऐसे बनेगा ना बेरिलियम का. बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम. तो ये हाइड्रोजन ब्रिज बनते चले जाएंगे चारों. ठीक है. क्लियर. अब हम हाइड्रोजन के 2 और कंपाउंड्स की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं. And the first compound that we discuss about is called H2O2, hydrogen peroxide. ठीक है. पहले इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, फिर इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, और फिर इसके रिएक्शंस की बात करेंगे. तो जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वुड हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. ठीक है. ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो इस ऑक्सीजन के पास भी 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर हैं. ठीक है. देखो लोन पेयर सबसे ज्यादा सेल्फिश होते हैं, तो वो एक अरेंजमेंट सिंपल सी बनाते हैं कि हमें मतलब नहीं है कहां पे बॉन्ड जा रहा है, हम इस तरीके से अरेंज होंगे कि दोनों लोन पेयर एक दूसरे से और दूसरे 2 लोन पेयर से सबसे ज्यादा दूर हो. तो इन जनरल जो स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कि वो 2 लोन पेयर यहां आ जाते हैं, ये 2 लोन पेयर यहां आ जाते हैं, तो उसके चक्कर में ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये एक ऐसे आ जाता है और एक ऐसे आ जाता है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर ये प्लेनर है तो ये कुछ बाहर की तरफ आता हुआ स्ट्रक्चर होता है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लाइक एन ओपन बुक स्ट्रक्चर.
यहां हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन बुक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन ओपन बुक स्ट्रक्चर। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो, ये इस तरीके से अगर मैं बनाता हूं तो ये एक प्लेन है, इस तरीके से बनाता हूं तो ये एक प्लेन है। अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एनर्जी दूं तो इस प्लेन के बीच का एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल में जो भी प्लेन बनता है उसे हेड्रन बोला जाता है। हेड्रन मींस प्लेन। ओके, तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में दो प्लेन्स हैं। एक प्लेन इन तीन एटम को जोड़ के बनाया गया, एक प्लेन इन तीन एटम को जोड़कर बनाया गया। तो इस मॉलिक्यूल में दो प्लेन्स हैं। इन प्लेन्स के बीच का एंगल चेंज किया जा सकता है, और अगर ये एंगल चेंज होगा तो दे ऑल्सो आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल which differ from each other in the angle between the planes in the molecule are termed conformational isomers or conformers. ठीक है, the angle between two planes is termed as dihedral angle. The angle between two planes is termed as dihedral angle. Is that clear? कोई confusion? कोई problem? ठीक है? Conformational isomers. अभी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो इस वजह से वो रैपिडली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता। जिनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं उनको आइसोमर्स नहीं कहा जाता। तो मोस्ट ऑफन ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को आइसोमर्स में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, OH नहीं बेटा, H। ये O तो एक लाइन में है। नीचे किसने बोला? बाहर आ रहा है ऐसे। ठीक है, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर है। बुक जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिख लीजिए। हाँ, तो लिख लीजिए डेफिनेशन। द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स of the same molecule which differ only in dihedral angle, are termed conformational isomers. Full stop. These structures in general have low energy difference hence rapidly interconvert कर दो।
rapidly interconvert. Full stop. Hence, it is not possible to separate and isolate each of them. Full stop. A molecule to show conformational isomerism, isomerism must have 4 non-planar atoms joined by single bonds. ठीक है? Is it okay? आगे लिखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. Hydrogen peroxide is the simplest molecule capable of showing conformational isomerism. ये हमने ऑर्गेनिक में ठीक से डिस्कस किया था ना, ऑर्गेनिक कर चुके हैं ना, उसमें कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म किया था ना. हमने कॉन्फॉर्मेशनल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं किया, तो वो आगे है, तो बाद में है. ओके, तो अच्छी बात है, कर लिया. ओके, बेटा सॉलिड स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में डिफरेंट होता है. HOH जो इनके प्लेन के बीच का एंगल है, आई थिंक दैट इज 91 डिग्री, और HOH का जो HOO का जो एंगल है दैट आई थिंक इज 101. एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, देख लेना. ठीक है? ओके, so that's what we have termed as the structure of hydrogen peroxide. Now we are going to talk about the preparation of hydrogen peroxide. Clear? देखिए, the various metal peroxide like sodium peroxide or barium peroxide are the salts of a weak acid, that is hydrogen peroxide. Treating any of them with a strong acid such as sulfuric acid, would form
हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है. Using barium peroxide instead of sodium peroxide is preferred as barium sulfate form is insoluble in water or insoluble in solution. Insoluble बोल दो ना, in solution भी क्यों बोलो? Is insoluble and precipitates out. ठीक है? Using anhydrous barium peroxide would form an insoluble coating of barium sulfate on the surface and stop further reaction. Full stop. Hence, a suspension of hydrated barium peroxide is used. A suspension of hydrated barium peroxide is used. Full stop. The presence of water molecules on the surface does not allow the barium sulfate to stick and the reaction continues. Full stop. Phosphoric acid is even better full stop. Not only barium hydrogen phosphate is insoluble, comma, the various metal ions present in barium peroxide also form insoluble phosphates and are removed from hydrogen peroxide. Full stop. These metal ions catalyze
these metal ions catalyze the decomposition of hydrogen peroxide, catalyze the decomposition of hydrogen peroxide and their removal stabilizes hydrogen peroxide and it can be kept or stored for longer duration. Kept or stored for longer duration. Full stop. It has good keeping properties. It has good keeping properties. ज्यादा दिन के लिए रखा जा सकता है, वही बात है, उसको एक लाइन में लिख दिया है. ठीक है, जो लिखा उसे एक बार पढ़ लो. इसके साथ पानी इज अ वीकर एसिड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड. वो इतनी आसानी से उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. इक्विलिब्रियम बन जाएगा, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा, बट प्रॉपर नहीं बनेगा. वहां से वो एग्जॉस्ट चला दो. एक्चुअली अब तो जो क्लास है वो ह्यूमिड होती जा रही है, इस वजह से तुम्हें गर्मी लग रही है. हाँ भाई, कुछ पूछना है? चलो अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड प्रेफरेंस. Heard of this word preference? Prefer. हमें ये इससे ज्यादा अच्छा लगता है, that is called preference. और preference हमेशा कंपैरिजन में होती है. जब आप सेलेक्टिविटी की बात करते हो तो वो कंपैरिजन नहीं होता. सेलेक्टिविटी होता मुझे ये चाहिए, तुम्हारे पास है तो बोलो, नहीं है तो छोड़ो. दैट इज सेलेक्टिविटी. प्रेफरेंसेस इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये. मोस्ट ऑफन हमारे डिसीजन प्रेफरेंस बेस्ड होते हैं रादर देन सेलेक्टिविटी बेस्ड. कहीं पे भी देख लो, आप किसी मार्केट में जाते हो, कुछ सामान लेने के लिए जाते हो, तो मोस्ट ऑफन आप खरीद के आ जाते हो, चाहे आपको वो चीज मिले या ना मिले जो आपको चाहिए.
चल यार ये मिल रहा है ये ले लो, खरीदने तो आएंगे। तो मोस्ट ऑफन इट्स प्रेफरेंस, पर कुछ सेलेक्टिव होता है कि यार ये मिलेगा तो लूंगा नहीं तो नहीं लेना। तो अभी हम फिलहाल प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। जब भी हम अपनी प्रेफरेंस की बात करते हैं तो प्रेफरेंस कुछ क्राइटेरिया पर बेस्ड होती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक अवेलेबिलिटी और एक द रिक्वायरमेंट या क्वालिटी। ठीक है, अब जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यू आर इन अ पार्टी, अ मैरिज पार्टी, और मैरिज पार्टी में तो वो बुफे सिस्टम होता है ना, जो मर्जी जाओ ले लो। आपको खाना है पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का वहां पे मिल रहा है, लेकिन पनीर टिक्का के पास बहुत सारी भीड़ है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो टिक्की वाला है वो खाली खड़ा हुआ है। तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक कहता नहीं तो मुझे तो पनीर टिक्का ही खाना, चाहे कितनी देर लग जाए, और दूसरा कहता है यार छोड़ पनीर टिक्का, टिक्की खा लेते हैं। तो यहां पे 2 चीजें हैं, एक द लाइकिंग और एक अवेलेबिलिटी। तो हम जो व्यक्ति पनीर टिक्का खाने का शौकीन है उसको भी टिक्की की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर पनीर टिक्के की भीड़ हम बढ़ाते चले जाएं, या हो सकता है वो पनीर टिक्का वाला कहे कि भाई साहब जब कोयले ठंडे हो गए, भाई आधा घंटा लगेगा गर्म होने में। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज की अवेलेबिलिटी कम करते चले जाएंगे तो इवन इफ दैट थिंग हैज अ वेरी हाई लाइकिंग, स्टिल द पीपल हु आर गोइंग टू टेक इट आर गोइंग टू बिकम लेस, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, प्राइस एग्जॉर्बिटेंट होता चला जाएगा तो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अवेलेबिलिटी और लाइकिंग खेलते रहते हैं। तो हम एक चीज को चेंज करके दूसरी चीज बदल सकते हैं। लाइकिंग एक फिक्स्ड होती है, बट अवेलेबिलिटी से हम प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो एक बहुत टिपिकल सा एग्जांपल है मैगी का। जब तक मैगी अवेलेबल खूब सारी थी, मैगी मैगी मैगी, नूडल का नाम ही मैगी था। भैया क्या खा रहे हो? टॉप रामन की मैगी खा रहे हैं। ठीक है, पर अब क्या हुआ, जैसे ही मैगी को बैन किया गया, मैगी की अवेलेबिलिटी ड्रास्टिकली कम हो गई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बैन हो गई, कुछ लोगों ने स्टॉक करके रखी हुई थी, कुछ शायद अवेलेबल भी थी। लेकिन जब बैन कर दी गई थी तब अचानक, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो द सर्टेन नूडल्स which were not having any preference earlier, which did not have any liking earlier, नहीं बाबा रामदेव की तो अभी मार्केट में ठीक से आई नहीं है, मुझे तो मिली नहीं, मैं गया था लेने के लिए, पर उसके चक्कर में दूसरे नूडल एकदम से अप आ गए। मानते हैं कि नूडल्स की सेल एक्चुअली डिप हो गई मैगी के जाने के बाद, क्योंकि कुछ लोग थे यार मैगी नहीं है छोड़िए, अच्छा नहीं लगता। अब कुछ लोग थे मेरे जैसे टिपिकली, गए मार्केट में, मैगी है नहीं है, क्या है जी, ये वाई वाई नूडल्स हैं, टॉप रामेन नूडल्स हैं, चलो टॉप रामेन दे दे। ठीक है, यिप्पी नूडल्स है, वाई वाई है, टॉप रामेन है, 2-3 चीज थी। मैं कहा यिप्पी ट्राई किया हुआ बहुत पानी वाला होता है, चल टॉप रामेन दे दे, तो टॉप रामेन में ले आया। दैट वाज सेकंड बेस्ट। ठीक है, तो ऊपर आ तो गया, टॉप रामेन वाज अबव। तो इस तरीके से हमने एक की प्रेफरेंस को बढ़ा दिया बाय डिक्रीजिंग द डिमांड ऑफ अदर। माना उसको अभी भी बिकना मुश्किल है। ठीक है, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस में होता है। अब जैसे कि लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है पानी के अंदर, एंड दैट सॉल्यूशन कंटेन्स सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन इज समथिंग लाइक 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। यही होती है ना पीएच। ठीक है,
हमने इसके अंदर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रखा है सल्फेट का। याद रखना सल्फेट की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड से बहुत ज्यादा होगी, चाहे जरा सा सल्फेट डाला हो, ठीक है। लेकिन सल्फेट इतना ढीठ है कि हम जब भी करंट पास करेंगे ये हाइड्रोक्साइड रिलीज हो जाएगा एंड ऑक्सीजन वुड बी रिलीज्ड, सल्फेट रिलीज नहीं होता। इज इट क्लियर? ठीक है। इसकी प्रेफरेंस और रिएक्शन की बात हम कल और करेंगे एंड होप सो कल हम इस चैप्टर को